السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه ومن اهتدى بهداه وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ سورہ نور ہے جس کا شمار قرآن مجید کی ان سورتوں میں ہوتا ہے جن میں سب سے زیادہ احکام کا بیان ہوا ہے۔ ویسے تو مدنی سورتوں میں عام طور پر احکام بھی آئے ہیں، لیکن سورہ نور اور سورہ احزاب وغیرہ میں بکثرت احکام مذکور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا آغاز یوں کیا ہے کہ یہ ایک عظیم سورت ہے جسے ہم نے اتارا ہے اور ہم نے اسے فرض قرار دیا ہے اور ہم نے اس میں واضح آیتیں نازل کی ہیں تاکہ تم لوگ نصیحت کرو۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے جہاں اس سورت کی عظمت بیان کی ہے اور وہ عظمت تو قرآن مجید کی تمام سورتوں کی ہے، لیکن دوسری بات یہ کہی ہے کہ ہم نے اس میں جو احکام بتائے ہیں وہ فرض ہے، یہ کوئی سفارش نہیں ہے کہ تم کرو یا نہ کرو، ایسا کوئی اختیار اور کوئی آزادی نہیں ہے۔ اس میں جو احکام ہیں واجب ہیں، کرنے ہی کرنے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ہم نے اس میں واضح آیتیں اتاری ہیں، یعنی اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے، کوئی الجھاؤ نہیں ہے۔ ان احکام کو سننے کے بعد کوئی یہ کہہ نہیں سکتا ہے کہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، اس لیے واضح باتیں ہیں اور مقصد یہ ہے تاکہ تم لوگ ان سے نصیحت کرو۔ اس ابتدا کے بعد اللہ رب العزت نے فوراً پہلا حکم سورت کا ذکر کیا کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد دونوں کی سزا یہ ہے کہ دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ۔ یہ اس وقت ہے جب دونوں کنوارے ہوں، اور اگر دونوں شادی شدہ ہوں گے تو ان کو سنسار کیا جائے گا، یعنی پتھروں سے اس وقت تک مارا جائے گا جب تک وہ ہلاک نہ ہو جائے۔ یہ بہت ہی سخت سزا ہے اور اس سختی کی وجہ بھی ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے پہلے زانیہ یعنی عورت کا ذکر کیا، ایک تو اس وجہ سے کہ زنا کاری اور بدکاری کے بعد سب سے زیادہ اسی کے ساتھ پرابلمس ہیں، حمل اس کو چلنا ہے، اور اس وجہ سے بھی اس کو پہلے ذکر کیا ہے کہ اگر ریپ نہیں ہے یعنی زنا کی جرم نہیں ہے تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ عورت نے اشارے نہ کیے ہوں، عورت مسکرائی نہ ہو، عورت نے سر سمجھ کر کے اس کے سامنے اظہار نہ کیا ہو، تو مرد کی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ وہ اقدام کرے۔ اس لیے عورت کا پہلے تذکرہ کیا اللہ رب العزت نے اور مرد کا بعد میں ذکر کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ فَجْلِدُوا کا لفظ جلد سے بڑا ہے اور جلد چمڑے کو کہتے ہیں، تو کہا کہ اس سے 2 مسئلے مستند کیے۔ ایک تو یہ کہ جو گھوڑا ہوگا وہ چمڑے کا ہوگا، نہ بہت زیادہ سخت نہ بہت زیادہ بڑائی، اور دوسرا یہ کہ جو مار ماری جائے گی وہ مار چمڑے تک پہنچے، اس کی گوشت نہیں بگڑنے، اس کی ہڈیاں نہیں توڑنی، معتدل مار مارنی ہے، ایسی مار مارنی ہے جو کچھ چمڑوں کا قتل کرے۔ بعض حکومتوں نے جو جلاد مقرر کر رکھے ہیں وہ تو دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور ایک ہی جگہ پر مارتے ہیں، یہاں تک کہ گوشت ادھر کر کے دور جا کر گرتا ہے، لیکن یہ مقصود نہیں ہے۔
शादी शुदा के लिए तो मारना ही मकसूद है, लेकिन तुम्हारे को सजा देना मकसूद है, जान से मारना मकसूद नहीं है। ये वजह है कि सूरह जनाजा की रिवायत में है कि मदीना में एक कुआरा नाकिसुल खिलकत का मतलब ये है कि पैदाइशी तौर पर कमजोर शख्स और निहायत ही लागत, उसको एक लौड़ी के साथ गद्दारी करते हुए पकड़ा गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजलिस में लाया गया। आपने उसको 100 कोड़े लगाने का वो इशारा किया। उस पर सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, ये आदमी 10 कोड़े में खत्म हो जाएगा, 100 कोड़े इसको लगाने के लिए कोई बचेगा ही नहीं। उस पर अल्लाह के रसूल ने कहा, फरमुदु लहू इफ्तारन फीही मिहतु सिमाती फरीदू वाहिदतन, कि एक जो है झाड़ू, जो लकड़ियों का 100 लकड़ियों का एक मोटा सा झाड़ू बनाओ और उसी से इसको मारो। गोया की मकसूद जान से मारना नहीं है, सजा देना है। इसलिए उसको 100 कोड़े लगाए जाएंगे, दरमियानी कोड़े लगाए जाएंगे, इसलिए नहीं मारा जाएगा कि वो जान से मर जाएगा। फिर अल्लाह ताला ने कहा, वला ताक़ुतु बिमा क़तु बिल्लाह, और इन दोनों के सिलसिले में तुम्हें अल्लाह के दीन के बाबत कोई नरमी ना पकड़ ले। इसका ये माना नहीं है कि मारते हुए तरस ना खाओ, बल्कि इसका माना यह है क्योंकि जब रहमत के इंसान जानवर को देखता है तो उसके अंदर मोहब्बत, रहमत, नरमी और शफ़क़त का जज्बा पैदा हो जाता है। यहाँ पे एक इंसान को मारा जा रहा है। ये मकसद है कि ऐसा की कुछ भी लगाई है कि ऐसा तरह का जज्बा और ऐसा तरफ पैदा ना हो कि तरफ खा करके उसको सजा ही न दो या उसकी सजा कम कर दो या इस तरह से सजा दो कि मकसद खाओ हो जाए। ये नहीं, तरफ इस तरह से नहीं खाना है कि अल्लाह के दीन को नासूदा करो। आगे अल्लाह ताला ने कहा कि ये अल्लाह पर और आखिरत का ईमान का तकाज़ा है। और आखिरी बात कही कि जब जानी को सजा दी जाए तो लाजिम है कि मोमिनों की एक जमात उस वक्त मौजूद रहे, उसका मुशाहदा करे। तन्हाई में सजा नहीं दी जाएगी। चोर का हाथ काटना हो उसको अकेले काट दिया जाएगा, मजमे में उसको ले जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जानी की सजा दी जाएगी तो मजमे में दी जाएगी। इसलिए कि चोर की अगर सजा में हाथ काटा जाए तो उसकी सजा भी हो गई और इबरत भी, कि हमेशा के लिए दूसरों के सामने उसके रुसवाई की ओलामत उसके साथ मौजूद है। और यहाँ पर अगर सजा छुपा करके दी जाए तो आदमी को ओलामत बाकी नहीं रहेगी। इसलिए कहा गया कि समाज के मुसलमानों के अफराद और मजमा मौजूद रहे, खुद इसको भी रुसवाई का एहसास हो और जो लोग देखें उनको भी इबरत हो और जो भी हिम्मत ना कर सके कि इस बुराई का एहतिकाब करे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसके बाद कहा कि अज़ानी ला यज़ीदु इल्ला ज़ानियतन, कि ज़ानी मर्द ज़ानिया औरत से ही शादी करेगा या मुशरिक से, और ज़ानिया औरत ज़ानी मर्द से ही शादी करेगी या मुशरिक से, और ज़ानी मर्द औरत जब तक तौबा नहीं कर लेते हैं उनसे मुसलमान का शादी करना हराम है। फिर जब ये ज़िना का हुक्म आया तो एक मसला ये पैदा हुआ कि कहीं कोई शख्स किसी की दुश्मनी और अदावत में गलत तोहमत लगा करके उस पर कोड़े लगवा दे, तो शरीयत ने दूसरा हुक्म नाफिज किया और कहा, वल्लज़ीना यरमूनल मुहसनात वल्मुमिनात वल्मुहसनात फ़मानी नज़र, अगर कोई किसी पाकदामन बाइफ़त औरत पर तोहमत लगा दे, गलत इल्जाम लगा दे, झूठा इल्जाम लगा दे, यहाँ औरत का भी पास आया है, मर्द का भी यही हुक्म है। अगर किसी पाकदामन मर्द पर कोई झूठा इल्जाम लगा दे तो उसका भी यही हुक्म है। तो शरीयत क्या कहती है कि फिर अगर वो गवाह न पेश करे, कितने? 4 गवाह। आम मामलात में शरीयत ने 2 गवाह का होना काफी करार दिया है। ज़िना की बर्बादी की अगर कोई तोहमत लगाता है तो 2 नहीं 4 गवाह चाहिए, और 4 गवाह ऐसे चाहिए जिन्होंने बचत में खुद ये अमल देखा हो। ये नहीं कि वो उसके घर में दूसरा सामने देखा हो, घर में घुसना दलील नहीं, आमों को देखा हो और 4 ने देखा हो। 1 देखे, 2 देखे, 3 देखे, खामोश रहेंगे।
3 लोग بھی دیکھے تو خاموش رہیں گے جب تک 4 نہ پورے ہو جائیں. اگر 4 نہیں پورے کر سکے تو ان کے اوپر حد نافذ ہوگی. یہ جہاں ایک طرف زناکاروں اور لڑکاروں کے لیے سخت سزائیں رکھی ہے، وہیں اس بات کا بھی اسلام نے اس کی اپنی کہانی کرائی کہ کسی باعفت پاکدامن مرد یا عورت پر کبھی کوئی شخص جھوٹا الزام لگانے کی ہمت نہ کر سکے. تو کہا 4 گواہ پیش کرو، اگر نہیں پیش کرتے ہو تو سوال کیا جاتا. تو ایسے تہمت لگانے والے خواہ ہو مرد ہو اور خواہ عورت ہو، ان کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے. اور ہوا بھی جیسا کہ آگے اس میں ذکر ہے، حضرت عائشہ پر تہمت لگائی گئی تو اس میں منافقین جو مسلمان تھے وہ منافق تھے، لیکن جو نادان مسلمان اس میں ملوث ہوئے اس کو سزا دی گئی. حضرت مصطح بن رفاصہ کو، حضرت حسان بن ثابت کو اور ایک اور حمزہ بن جہش کو 80 کوڑے لگائے گئے. تو یہ گواہ نہ پیش کرنے کی وجہ سے یہ سزا دی جائے گی اور یہ حکم ہمیشہ کے لیے ہے. پھر ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ ایک شوہر ہے، وہ اپنی بیوی کو اگر بدکاری کرتے ہوئے دیکھے تو کہاں سے گواہ لے جائے گا؟ بلکہ ایک صحابی آئے، انہوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایک آدمی آئے اور وہ اپنی بیوی کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھتا ہے، اگر وہ بولتا ہے تو تہمت کی سزا لگے گی کہ اس کے پاس گواہ نہیں ہے. اگر وہ غیرت میں آ کر کے اس آدمی کو دعوت کو قتل کر دیتا ہے، بدلے میں قتل کر دیا جائے گا. تیسری شرط یہ بچتی ہے کہ آدمی اپنے اندر غصہ اور نفرت کو چھپائے ہوئے دیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انتظار کرو. اور اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی جس میں یہ کہا گیا کہ والذین یرون ازواجہم، وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں ولم یکن لہم شہداء، اور ان کے پاس گواہ نہ ہو. شوہر اپنی بیوی کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھے اور گواہ ان کے پاس نہ ہو، نہ ہو، الا انفسہم، سوائے اس کی اپنی ذات کے کسی نے اس کو نہیں دیکھا ہے، تو کہا فشہادۃ احدہم اربع شہادات. اب ایسی صورت میں شوہر 4 مرتبہ اللہ کی قسم کہہ کر کے کہے گا کہ بلا شبہ وہ اپنے دعوے میں سچا ہے، اس نے اپنی بیوی کو فلاں مرد کے ساتھ یا کسی مرد کے ساتھ ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے. 4 مرتبہ وہ قسم کھائے گا اور 5ویں مرتبہ وہ کہے گا کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کرے. جب مرد قسم کھا لے گا تو ایسا نہیں ہے کہ مرد کی قسم کھانے سے شریعت اور عورت پر حد نافذ کر رہی نہیں. اب عورت کے اوپر حد کیسے بڑھے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عورت کا مسئلہ آئے گا. عورت 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کے کہے کہ وہ کا شوہر جو بات کہہ رہا ہے وہ جھوٹ کہہ رہا ہے، اور اگر شوہر سچا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہو. اس کو اسلام میں ملعنت کہا جاتا ہے. جب دونوں ملعنت کر لیں گے دونوں کی علیحدگی کر دی جائے گی. اب دونوں ایک ساتھ رہ بھی نہیں سکیں گے. لعان کیا ایک دوسرے پر لعنت کی، ہاں نہ تو اس کے اوپر تہمت کی سزا نافذ ہوگی اور نہ ہی اس کے اوپر زنا کی سزا نافذ ہوگی. دونوں کو علیحدہ کر دیا جائے گا. اب ان دونوں کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. ایک تو غلط سے جھوٹا ہے گی، ایک تو غلطی پر ہے گی، خواہ مرد غلطی پر ہوگا خواہ عورت غلطی پر ہوگی. ایسی صورت میں اس کا معاملہ اللہ پر ہے. اللہ چاہے گا اگر اس میں سے خطاکار نے توبہ کر دی، اللہ نے توبہ قبول کر دی تو پھر کوئی بات نہیں ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے واقعے اس کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ پیش آیا اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے. اور پھر اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کیا ہے کہ زناکاری، بدکاری، تہمت وغیرہ کے معاملات لگنے کے جو اسباب ہیں، جو وسائل ہیں، جو بنیادیں ہیں، ان کو پوری کرنا ہے. سب سے پہلی چیز میں یہ کہی گئی کہ گھروں میں داخلے کے کچھ رول ہیں اسلام کے. ہر شخص گھر میں آ نہیں سکتا، اور اگر کوئی آتا ہے اجنبی تو وہ ایسے آئے اس کا طریقہ بتایا گیا. دوسری بات یہ کہی گئی کہ مردوں اور عورتوں کو اپنی اپنی نظریں جھکا کر کے رکھے اور چلنے کی بات کہی گئی. تیسری بات یہ کہی گئی کہ پردے کا اہتمام ہونا چاہیے. اور چوتھی بات یہ کہی گئی کہ کنوارا کسی کو نہیں رہنا ہے تو کی شادی کرا دو. یہ 4 چیزیں بتائی گئی کہ اگر ان کو کیا جائے گا تو پھر نہ تو سرکاری معاشرے میں رہے گی اور نہ
कहीं किसी पर तौबत और इम्तिहान की बात आएगी। अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम, ऐ ईमान वालों, अपने घरों के अलावा किसी के घर में ना दाखिल हो हत्ता तस्तअनिसू, यहाँ तक कि उनसियत हासिल कर लो, इजाजत तलब कर लो, व तुसल्लिमू अला अहलिहा, और घरवालों को सलाम करके तब दाखिल हो, ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है ताकि तुम नसीहत कर लो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीसों में इसकी मजीद तफसीलात भी दी है कि कैसे एक आदमी किसी के घर आएगा। एक शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आया और कहा, अली जी क्या मैं घुस जाऊं? अल्लाह के रसूल ने अपने खादिम से कहा, जाओ इससे कहो कि ये सलाम करे और फिर अंदर दाखिल हो। उसने सुन लिया, बाहर से मुझसे अच्छा कहा जाए, उसने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि अदखुलू, सलाम किया और कहा क्या मैं अंदर आ जाऊं? तो अल्लाह के रसूल ने उसको आने दिया। इसी तरह से एक सहाबी रसूल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने सलाम नहीं किया, सलाम नहीं किया, मैंने फरमान हुए सलाम नहीं किया। अल्लाह के रसूल ने कहा वापस जाओ, बाहर निकलो, फिर सलाम करो, फिर अंदर आओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी बताया कि अगर आदमी 3 मरतबा सलाम करता है, घर से इजाजत नहीं मिलती है, तो वो वापस चला जाए। आपने ये भी बताया अगर कोई आता है दरवाजे पर, सलाम करता है, उससे पूछा जाए कौन, तो वो अपना नाम बताए, मैं ना कहे। आपने ये भी कहा अगर कोई घर के सामने आता है तो दरवाजे के सामने खड़े होकर के इजाजत ना करे, वो राइट साइड में खड़ा हो या बाईं साइड में खड़ा हो। आपने ये भी कहा कि अगर कोई सामने खड़ा हुआ है और घर वाला कुछ मार करके उसकी आंख भी फोड़ दे तो उसका नबीयत है न पेशाब है। तो ये कुछ घरों में दाखिले के आदाब और तरीके बताए गए थे कि किस तरह से कोई अजनबी किसी के घर जाएगा तो वो रहेगा। आप फिर आगे इस सूरत में कहा गया कि किसी घर में जाओ और घर में कोई न मिले, फलादल खुलूहा, तो घर के अंदर ना घुसो। घर में कोई नहीं है तो फिर घर के अंदर घुसने की तुम्हें इजाजत नहीं है। यहाँ तक की इजाजत दी जाएगी, आपने दूर कर दिया भाई लोग है, ठीक है चले जाओ, तो इजाजत दी जाएगी तभी आप जा सकते हो। लेकिन अगर कहा जाए वापस चले जाओ तो फिर वापस चले जाओ, यही तुम्हारे लिए ज्यादा पासीदगी का बाइस है। फिर कहा कि तुम पर कोई घर नहीं है कि तुम ऐसे घरों में दाखिल हो उसमें रिहाइश नहीं इख्तियार की जाती। जैसे मसाजिद है, जैसे बस स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, होटल है, मुसाफिर खाने हैं, ये ऐसी जगह है जो सबके लिए खुली होती है, वो रिहाइश की जगह किसी की मखसूस नहीं होती है। तो ऐसी जगहों पर शरीयत ने कहा कि तुम्हारे लिए इसमें क्योंकि फायदे की चीज है, इसलिए तुम इन घरों में दाखिल हो जाओ, कोई हर्ज नहीं है। और अल्लाह खूब जानता है जो तुम छिपाते हो, जो तुम जाहिर करते हो। फिर अल्लाह ताला ने नजरों को नीचे रखने का हुक्म दिया और कहा कि मोमिन से कहो कि वो भी नीचे अपनी नजरें नीचे रखें, वह अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, ये उनके लिए ज्यादा बेहतर है। लेकिन अल्लाह ताला खूब जानने वाला है जो कुछ लोग करते हैं। और फिर कहा कि मोमिन औरतों से कह दो कि ये भी अपनी नजरें नीचे रखें। नजरों के मामले में मर्दों का मामला ज्यादा अहम है, मर्द को ज्यादा ताकीद है कि वो नजर नीचे रखे। पर्दे के मामले में क्योंकि औरत को अलग से पर्दा करने की बात की जा रही है, औरतों का मामला यह है कि वो शहवत की नजर से मर्दों को न देखें तो देख सकती है, जैसा कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने मस्जिद नबवी के शहर में हबशियों की कुश्ती देखी थी, तीरंदाजी देखी थी। तो उनके लिए मर्दों को देखना जायज है, इसके मुकाबले में कि कोई मर्द किसी औरत को देखे, क्योंकि औरत को मर्द के लिए बहुत बड़ा फितना बना दिया गया है। और फिर कहा गया कि वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना, अब पर्दे का हुक्म दिया गया। एक तो नजर नीचे रखे औरत, दूसरे अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करे, तीसरी बात कही गई कि और अपनी जीनत को जाहिर ना करे। जीनत 3 तरह की है, एक जीनत जो है इंसान की फितरी हुस्न है, और एक बनाव सिंगार फैशन के जरिए से हुस्न आता है। कोई ब्यूटी पार्लर चला जाए, वहां से संपत्ति आ जाए, ये जीनत है। तो एक बाहर वाली जो जीनत है, अंदर वाली जो जीनत है, इसके अलावा एक तीसरी जीनत है, वो है लिबास। जैसा कि कुरान मजीद में कहा गया जब नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाना हो तो जीनत इख्तियार करो, लिबास पहन करके जाओ। तो लिबास भी जीनत है।
तो औरतों के सिलसिले में यहाँ पर कहा गया कि वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना, और वो औरतें अपनी जीनत को जाहिर न करें इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, मगर जो जाहिर हो जाए, जाहिर होने में क्या है, जैसे लिबास इसका है तो लिबास जाहिर हो जाएगा, कोई मसला नहीं, जैसे वो जीनत है, या फिर हरकत करते हुए जिस्म का कोई अंग किसी वजह से खुल जाए तो वो जो है मा ज़हरा मिन्हा नहीं है, वो माफ है। आगे कहा गया वलियक़िना बिखुरूजिहिन्ना, और अपने दुपट्टे अपनी दीवारों पर डालने, वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना, और अपनी जीनत ना जाहिर करें। ये दूसरी नीयत कौन है? ये जीनत ज़ाहिरा है। जीनत ज़ाहिरा का मतलब ये है जैसे हाथ है, चेहरा है, चूड़ियां है, बालियां है, आंखों में काजल है, ये सारी चीजें किसके लिए जाहिर कर सकती है? अपने शौहर के लिए और अपने बाप के लिए, अपने शौहर के बाप के लिए, अपने बेटों के लिए, अपने शौहरों के बेटों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने भतीजों के लिए, अपनी भांजियों के लिए, मुसलमान औरतों के लिए, अपने भाइयों के लिए, और ऐसे तालीम के लिए जो इनके अंदर जिनसी ख्वाहिश नहीं पैदा हुई है, या ऐसे बच्चे जो औरतों के मसाइल से अभी वाकिफ नहीं है, इनके सामने औरत अपना चेहरा खोल सकती है, अपनी हथेली खोल सकती है, उनका हार, उसका बाली, उसका बिंदा, उसका काजल, उसकी लिपस्टिक, सब ये लोग देख सकते हैं। ये सब अजनबी नहीं है, ये देख सकते हैं, क्योंकि इन सब से उनकी शादी हराम है, ये सब उनसे शादी नहीं कर सकते। हाँ, इसके बाद एक और जीनत है, वो जीनत बातिनी है। वो जीनत बातिनी क्या है? जैसे पेट है, रान है, सीना है, या मक्सी आगा जो है, ये ऐसे आगा है जिनको शौहर के अलावा कोई नहीं देख सकता। अगर सारे मिलाओ तो पहले हुए औरत, उसका भाई भी नहीं देख सकता, उसका चचा भी नहीं देख सकता, उसका मामू भी नहीं देख सकता, उसका भतीजा भी नहीं देख सकता, उसका भांजा भी नहीं देख सकता। ये मोरी का दायरा उनके देखने की चीज नहीं है, उनके लिए भी इस चीज पर बंदिश है। तो घरों में भी सिर्फ शौहर के सामने ऐसे बात पहले जा सकते हैं, क्योंकि शौहर के लिए औरत का सारा बदन, इसी तरह से औरत के लिए शौहर का सारा बदन देखना ये जायज है। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये अहकाम बदलाए और फिर कहा कि जो है इसी तरह से वला यज़रिबना बिअर्जुलिहिन्ना, जब चले तो अपने पैरों को जमीन पर मारती हुई ना चले, ताकि उनके ज़ेवर-ओ-ज़ीनत के सामान, पायल, मुंह, पायल वगैरह बजे और लोग उसकी तरफ मुतवज्जे हों। फिर आखिर में कहा कि इन सब मामलात में कुछ न कुछ कोताही हो जाएगी, इसलिए तुम लोग तौबा करते रहो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। आखिरी बात जो कही अल्लाह ताला ने, वो ये कि वअनकिहुल अयामा मिनकुम, जिनकी तुमसे शादी नहीं हुई है। शादी ना होने का मतलब ये है कि मौजूदा वक्त में बीवी नहीं है, मौजूदा वक्त में शौहर नहीं है, बात तुम्हारा हो, बात बीवी मत की हो, बात शौहर कर चुका हो, शरीयत ये कहती है कि ऐसे लोगों का निकाह करा दो, ऐसे लोगों का निकाह करा दो, यहाँ तक कि अपने साले गुलाम और रौडियों का भी निकाह करा दो। किसी को बगैर शादी के, बगैर जोड़े के न रखो। एक उम्र होती है, उस उम्र के बाद इंसान के जिस्म को जिस तरह से खाने और पानी की जरूरत होती है, ऐसे ही जिसकी जरूरत भी होती है। उस पर बहुत ज्यादा फाउंडेशन नहीं किया जा सकता। पीछे जो नजर झुकाने की बात कही गई, जो पर्दा करने की बात कही गई, इसका यह मतलब नहीं है कि आदमी शादी भी न करे और हमेशा नजर झुका करके रहे, तब तक बढ़ेगा आदमी। तो इसलिए अल्लाह ताला ने इंसान की उस ख्वाहिश पर पाबंदी नहीं लगाई है, सिर्फ उसको मालूम किया है, उसको एक जायज रास्ता दिखाया है। शादी से धोखा इसलिए जाता है कि आदमी कहता है कैरियर बना ले, जॉब लग जाए, पढ़ाई मुकम्मल हो जाए, कमाई का कोई जरिया हो जाए, तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये पूर्ण से पढ़ा। अगर शौहर जिसकी शादी होने जा रही गरीब ही होगा, अल्लाह ताला उसको अपने फर्ज से गरीब और मालदार कर देगा। आप देखेंगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आए, एक मर्तबा जो है एक औरत आई जिसने अपने आप को हिदा किया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नीचे से ऊपर नजर डाली और फिर नजर फेर ली। एक साहबी ने कहा, अल्लाह के रसूल हमसे शादी करा दीजिए। आपने कहा कुछ है, जाओ कुछ ले आओ, ढूंढा कुछ नहीं पाया, कहा कि जाओ ऊँची एक लोहे की ले आओ, वो भी नहीं पाया। सिर्फ वो चादर पहने हुए कहा ये देगा, उसी चादर के ऊपर निकाह करा दी। ऐसे आदमी जिसके पास एक चादर हो
उससे निकाह करा दिया गया, क्योंकि अब इससे ज्यादा आदमी की जरूरत क्या हो सकती है? रोटी देने वाला, रोटी रसा अल्लाह में है। आदमी जिस तरह से अकेला खा रहा है, अल्लाह के रसूल कह भी पा रहा है कि एक आदमी का खाना तो उसके लिए काम है। अभी अकेला खाना है, उसी में से दोनों लोग खाएंगे। और वैसे ही शादी के बाद एक एक दो नहीं होते, एक एक 11 हो जाते हैं। शादी के बाद एक एक दो नहीं होते, एक एक 11 हो जाते हैं लोग। फिर उसके बाद जिम्मेदारी सोचते हैं। हो सकता है बीवी कोई खास मशवरा ले, हो सकता है बीवी के पास कोई घर आता हो सकता है बीवी के घर वाले को मदद करके उसका बिजनेस करा दे, हो सकता है जो औलाद पैदा हो वो अच्छी जान पे चली जाए, तो हालात सुधर जा सकते हैं। ऐसा आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है कि हम अपनी बेटी और बहन की शादी एक अच्छे लड़के से, अच्छे घराने में करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद लोग घबरा जाते हैं। तो किसी की गरीबी और अमीरी ये देख करके शादी नहीं होती। शादी की बुराई तकवा और अखलाक देकर की जाती है। इसलिए पूरे हो जाने पर सिर्फ जहां लगेंगे रोके रखना और शादी न करना ये मुनासिब नहीं। ये चंद आसाम अल्लाह ने इसलिए किए हैं ताकि माशरे में बर्दारी और हिनाकारी इस पर गर्दन लगाई जा सके और उसको रोका जा सके। जब तक ये इजाजत के हकाम, ये पर्दे के हकाम, ये नजरों के हकाम, ये शादी के हकाम, इन पर हम मुकम्मल तौर से अमल नहीं करेंगे, हमारे माशरे में बर्दारी और हिनाकारी ये खत्म नहीं होगी। अल्लाह ताला हम सबको इन अहकाम पर मुकम्मल तौर से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। मर्द और औरत की नमाज में क्या फर्क है? मर्द और औरत में शरीयत में कहीं पर भी मर्द और औरत के किसी मसले में फर्क नहीं है जब तक कि अलहदा की दलील बनी जाए। हर हुक्म मर्द और औरत यकसा है। जब अलग से कोई दलील आएगी कि नहीं इसमें मर्द अलग है, इसमें औरत अलग है, तब अगर कोई ये कहता है कि मर्द की नमाज अलग है, औरत की नमाज अलग है, तो उसको दलील देना पड़ेगा। और ऐसी कोई दलील नहीं है कि मर्दों की नमाज अलग होती हो और औरतों की नमाज अलग होती हो।